Om Shanti. Om Sarve Bhavantu Sukhinah. Sarve Santu Niramaya. Sarve Bhadrani Pashyantu. Ma Kashchit Dukhabhag Bhadvait. Om Shanti, Shanti, Shanti. A very warm welcome to our dear family and friends present here today who have joined us to experience divine bliss with Sister Shivani's words of wisdom. A possibility in life can only take shape when it starts with an idea, a purpose, and its manifestation. Our mother, Mridula Somani, who believes in spiritual wellness, has always been an ardent follower of Sister Shivani for years. Her desire to therefore inspire family and friends on this journey gave her this idea to organize this event today. A dream which was shared by both Papa and Mummy. Papa may not be here with us physically, but we truly believe that he is there with us in spirit. His wish and planning has already laid the foundation for the event, and this wouldn't have been possible without his blessings. If you wish something with a pure heart and an intention, the universe will find a way to make it a reality. With sincere gratitude and a humble heart, we welcome Sister Shivani. Sister Shivani is a practitioner of Raj Yoga meditation of the Brahma Kumaris for over 25 years. Her practical application of spiritual principles on the TV program Awakening with the Brahma Kumaris for over 14 years has empowered people to overcome issues of emotional distress, depression, and relationship conflicts. In March 2019, she was awarded the prestigious Nari Shakti Puraskar, the highest civilian honor for women in India, for her role in transforming human behaviors. She has been appointed as Goodwill Ambassador by the World Psychiatrists Association, and she is an electronics engineer from Pune University. Didi, we are incredibly blessed and privileged to have you amongst us. We are also deeply indebted to Sister Neha and Sister Gayatri from Brahma Kumaris who have graced today's occasion with their presence. I request Varun and Namrata Somani to kindly felicitate them. We now request Srimati Mridula Somani, Srimati Ashaji Podar, and Srimati Vandanaji Somani to welcome and felicitate Didi on stage. Om Asato Ma Sadgamaya, Tamso Ma Jyotirgamaya, Mrityur Ma Amritam Gamaya. Lead me from the unreal to the real. Lead me from the darkness to the light. Lead me from death to immortality. We now request Sri Ratanji Taparya and Sri Surendraji Somani to light the lamp. Let's pray that we can remove the darkness of our ignorance with the light of knowledge.
A special mention and gratitude to Sri Ramesh Ji Podar, who has been kind enough to request for Didi's presence and make this dream come true. Without taking any further time, we request Sri Ramesh Ji to take over the mic and say a few words. ओम शांति। शिवानी दीदी के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है और बहुत समय चाहिए, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि हम लोग उनके बारे में बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए आए हैं। तो मैं 2 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूँगा। ज़िंदगी को जीना भी एक कला है और दीदी को मैं 14-15 साल से फॉलो कर रहा हूँ, उनके वीडियोस सुनता हूँ और उनसे जो हमने सीखा है कि किस तरह से ज़िंदगी को खूबसूरती से जिया जाए। और जो कुछ भी मैंने सुना है तो मैं 2 मिनट में 5 मुख्य क्या बातें मैंने सीखी है, हमने सीखी है, उसके बारे में कहूँगा और 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करके, ताकि हम दीदी को अच्छे से सुन सकें। सबसे पहली बात जो हम लोगों ने इनसे सीखी है कि बाहरी जो परिस्थिति है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। भले वो किसी भी तरह की परिस्थिति हो, वो हमें परेशान करने वाली हो या वो बहुत हमें आनंदित करने वाली हो, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसे हमें अपने मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। ये हमने इनसे सीखा है, जिससे अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सुकून आया है। दूसरी बात जो हमने दीदी से सीखी है वो कि हमें जो कुछ भी खुद को चाहिए वो सबसे पहले हमें दूसरों को बांटना होगा, भले वो समाज को हो, संस्थान को हो, हमारे मित्रों को हो या हमारे देश को हो। जितना आप बांटेंगे उससे डबल तिबल हमको आपस फिर से मिलेगा, भले वो प्यार हो, एम्पैथी हो, हैप्पीनेस हो, कोई भी बात हो। वो भी हमने दीदी के वीडियोस बार बार देख करके सुना है, समझा और अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश की है। तीसरी बात दीदी से हम लोगों ने ये सीखा है कि हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि स्माइलिंग का एक ज़बरदस्त पावर है और कभी भी हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमको लगता है कि गुस्सा करने से हमारा काम हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही टेम्परेरी एक फीलिंग है, क्योंकि दूसरी बार अगर हमको वही काम कराना है तो हमें और ज़्यादा गुस्सा करना पड़ेगा और हम अपने आप को ही टॉर्चर करेंगे। चौथी बात जो हम लोगों ने सीखी है कि एक एम्पैथिक लिसनिंग हम लोगों को हमेशा करनी चाहिए। दूसरों को सुनने के पहले इस दृष्टि से या इस तरह से नहीं सुनना है कि हमको उसके लिए जवाब देना है। मन से और दिल से हमको सुनना है, जिससे सामने वाले को बहुत अच्छा लगेगा और अल्टीमेटली उसका सुकून हमें खुद को ही मिलेगा। और 5वीं आखिरी बात हम लोगों ने जो सीखी है कि हर व्यक्ति के जीवन में 2-3 कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जेन्युइनली हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसी बातें की है जिससे हम ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं और उस कष्ट को हमेशा सहन करते रहते हैं, माइंड में हमेशा एक टॉर्चर बना रहता है। तो उनसे छुटकारा पाने के लिए एक बहुत अच्छी विद्या हमने दीदी से सीखी है कि आप अपनी आंखें बंद करके उनको सामने लाएं और उनके बारे में जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया है उसको भूलकर भगवान के लिए उनसे प्रार्थना करें कि जो कुछ भी आपने मेरे साथ किया होगा वो कुछ बहुत अच्छे तरीके से अपने आप के तरीके से ठीक ही होगा। भगवान आपकी बहुत उन्नति करे, भगवान आपका भला करे। और जैसे ही हम ये करते हैं तो हमारे मन में एक बहुत सुकून आ जाता है। ये भी दीदी हमने आपसे ही सीखा है। सो थैंक यू सो मच दीदी, जो हम लोगों ने इतनी बातें आपसे सीखी हैं और हम अपने जीवन में उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। और मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम दीदी को सुनना चाहेंगे। उनकी एक एक बातें जो है अमृत वचन जैसी होती है। तो आइए हम सब मिलकर के इस अमृत वचन का पान करें और हमारे जीवन में जो कुछ भी हम सीख के जाएंगे उसको अपनाने की कोशिश करें। ओम शांति। थैंक यू सो मच।
ओम शांति। हम सब फिज़िकल रूप से अपनी अपनी जगह पर सेट हो गए हैं। हम सब ने अपना फ़ोन भी साइलेंट कर लिया होगा, लेकिन अब ज़रूरी